اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت رام لیلا میدان دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل انڈیا اتحاد یعنی انڈیا الائنس، جو مہا گٹھ بندھن تمام پارٹیوں کا بنا ہے، انہوں نے گزشتہ کل رام لیلا گراؤنڈ میں اپنی زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی عوام دشمن پالیسیاں، یعنی بی جے پی نے جو جنتا کے خلاف جو پالیسیاں بنائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے بی جے پی ہٹلر اور تانا شاہی کے انداز میں راج کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف زوردار احتجاج ہوا۔ کیجریوال اور سورین کی رہائی کا بھی ڈیمانڈ کیا گیا۔ جمہوریت بچاؤ مہا ریلی میں 5 نکاتی مطالبات پیش کیے گئے۔ آئین بچانے کے لیے، سنویدھان کو بچانے کے لیے آخری سانس تک لڑنے کا اعلان کیا گیا۔ پرینکا گاندھی نے اس موقع پر کہا کہ غرور ایک دن چکنا چور ہوتا ہے۔ بھگوان رام کی جیون کا یہی پیغام تھا جو اس رام لیلا میدان سے مودی حکومت کو دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہیں پر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی اس الیکشن میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا 400 پار کا نعرہ بغیر ای وی ایم کی سیٹنگ اور بغیر میچ فکسنگ کے 180 کو بھی بی جے پی پار نہیں کر سکتی۔ کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں اور منصفانہ انتخابات جمہوریت کی روح ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر، یوں سمجھیے کہ اپوزیشن اتحاد نے گزشتہ کل زبردست اپنی طاقت کا، اپنے شکتی پردرشن کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ حیدرآباد کی نالسار یونیورسٹی میں سپریم کورٹ کی جج بی وی ناگرتنا کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوٹ بندی جو ہوئی تھی 2016 میں، وہ نوٹ بندی جو ہوئی تھی، وہ نوٹ بندی کالے دھن کو سفید کرانے کا اچھا طریقہ تھا۔ انہوں نے اسے غیر آئینی قرار دیا اور عام آدمی پر اس کے سنگین نتائج کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے 30 مارچ کو اپنے حالیہ بیان میں
दिहाड़ी मजदूरों के सामने आने वाली सख्त परेशानियों का तस्करा किया और कहा कि जिन्हें ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से पहले ही अपनी नोट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, यह नोटबंदी काले धन को सफेद कराने का अच्छा तरीका था। बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट, यूपी मदरसा बोर्ड को गैर आईनी, गैर संवैधानिक करार देने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और दीगर की तरफ से दायर इस दरखास्त में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे मनमानी करार दिया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि इस फैसले से मदारिस में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के फ्यूचर पर सवालिया निशान लग गया है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट के आईनी जवाब पर कोई फैसला नहीं लेती, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए। दरअसल 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अर्जी पर समाप्त करते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी और सेकुलरिज्म के उसूल के खिलाफ करार दिया था। यह कानून उस वक्त पास हुआ जब मुलायम सिंह यादव वजीर आला थे। रियासत में बड़ी तादाद में मदारिस और उनमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद को देखते हुए हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा था कि वो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को रस्मी तालीम फराहम करने वाले दूसरे स्कूलों में शामिल करे। इसके लिए अगर जरूरत हो तो नए स्कूल खोले जाएं। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है जिसे सुनकर आप भी हंसेंगे। जी हाँ, खबर ऐसी है कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हम झुकने वाले नहीं हैं। मेरठ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा भारत माता की जैसे इस्तकबाल किया गया और तलाक़ सलासा पर पाबंदी मुस्लिम खवातीन के हक में बताया गया और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भाइयों बहनों, हम करप्शन के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। तो इस खबर पर मैंने भी पढ़ने से पहले खूब हंसा, आपको भी हंसने की इजाज़त है। यानी सबसे ज़्यादा करप्शन मोदी एंड मोदी सरकार और बीजेपी कर रही है और मोदी जी, वो कहावत है ना, कोतवाल को डांटे, बस वैसे ही मामला है कि वो खुद कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हम झुकने वाले नहीं हैं, जबकि करप्शन में सबसे आगे हजरत मोदी जी और उनकी पार्टी है। जितना करप्शन और जितना मुल्क का सत्यानाश और जितना नोटबंदी से लेकर न जाने कितने बड़े बड़े करप्शन किए गए, वो सब हजरत और हजरत की पार्टी के दौर में हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, अडवाणी, आप जानते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, जिसका हाल बीजेपी ने क्या कर दिया है वो भी आपको मालूम है। लेकिन बीजेपी ने उन्हें घर बैठाकर साइड में करके मुल्क का जो सबसे बड़ा एजाज होता है, भारत रत्न अवार्ड होता है, वो अडवाणी को दिया और सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने घर जाकर उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया। यानी ये भी एक खास बात है। सदर जमहूरिया ने अडवाणी को दिल्ली में उनकी रिहाइश गाह पर जाकर भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़, साबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। एक तस्वीर उस वक्त की एक और वायरल हो रही है कि जिसमें मोदी जी और अडवाणी बैठे हुए हैं और मुल्क की सदर जमहूरिया जो है वो अदब से खड़ी हुई है, जिसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो मोदी जी किस तरीके से एक महिला का भी अपमान कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का पद होता है सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस पद का भी अपमान कर रहे हैं। खैर, मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न अवार्ड से अडवाणी जी को नवाजा गया। मैं आपको बता दूं कि अडवाणी जी कराची पाकिस्तान में पैदा होने वाले लाल कृष्ण अडवाणी 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में एक हिंदू सिंधी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम किशन चंद अडवाणी और वालिदा का नाम ज्ञानी देवी है। उनके वालिद पेशे के एतबार से एक कारोबारी थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची से हासिल की। उसके बाद उन्होंने डीजे नेशनल स्कूल हैदराबाद सिंध में दाखिला लिया। तकसीम के वक्त वो मुंबई आ गए थे। लाल कृष्ण अडवाणी के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, इसलिए जब भारत रत्न अवार्ड देने का इनके नाम का ऐलान किया गया था तो उस वक्त भी कई लोगों ने बाकायदा ऑब्जेक्शन और एतराज जताया था।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जहां इलेक्ट्रल बॉन्ड करप्शन के हैरान कुन कर देने वाले इंकशाफात और मामले सामने आ रहे हैं। स्क्रोल की एक नई रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि बीजेपी ने अरबों का घोटाला किया। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला भी मोदी हुकूमत का ही घपला निकला। एक्चुअल में इलेक्ट्रल बॉन्ड को छुपाने के लिए ही सीएए का जिन बोतल से बाहर निकाला गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबरों को छुपाने के लिए ही केजरीवाल को उठाया गया और इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे बड़े अरबों रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए मोदी सरकार न जाने क्या क्या करवाएगी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को भी इसलिए मारा गया ताकि मुख्तार अंसारी, केजरीवाल और सीएए में अपने जो दलाल चैनल है, रखेल चैनल है, वो उसी में लगे रहे, जनता का ध्यान भटकाते रहे और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जनता के सामने ना आए। लेकिन अभी खबरें आ रही है, जो नई रिपोर्ट स्क्रोल की जारी हुई है उसमें सामने बात आई है कि बीजेपी ने अरबों रुपये का घोटाला किया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में गुज़िश्ता कल अपोजिशन इत्तेहाद के लीडरान हुकूमत पर खूब बरसे गरजे। शरद पवार ने कहा कि अपने वोट से दिखा दीजिए कि जमहूरियत पर हमले को कैसे रोका जाता है। यानी उन्होंने जनता से अपील की कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करके दिखा दीजिए कि जमहूरियत के कातिल और जमहूरियत का मर्डर और जमहूरियत को कत्ल करने वालों को कैसे रोका जा सकता है। वहीं पर केजरीवाल की बीवी ने यह कहा कि सिर्फ जबान पर नहीं, हमारे तो दिल में इंडिया है। और केजरीवाल के जेल से दिए गए पैगाम को केजरीवाल की बीवी ने गुज़िश्ता कल रामलीला मैदान में पढ़कर सुनाया। वहीं पर हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन ने भी ललकारते हुए कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं मोदी जी और इंडिया डरेगा नहीं। और वहीं पर उद्धव ठाकरे ने कहा, रामलीला मैदान से उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, यानी भाजपा जो 400 पार का नारा लगा रही है, तो उद्धव ठाकरे ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी बहनें हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे खामोश बैठेंगे, पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करे कि ईडी, सीबीआई वगैरह उसकी इत्तेहादी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक शख्स और एक पार्टी की हुकूमत मुल्क के लिए खतरा हो गई है और अब की बार जनता दिखाएगी कि बीजेपी 400 पार नहीं, बीजेपी तड़ी पार। और अखिलेश यादव और दूसरे दीगर अपोजिशन लीडरान ने भी हुकूमत को ललकारते हुए कहा और लोगों को भी ये कहा कि अगर मसाइल से, समस्याओं से, बेरोजगारी से, महंगाई से, इन तमाम प्रॉब्लम से अगर आजादी चाहते हो तो फिर मुल्क को इस भाजपा से आजादी दिलानी होगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, मुख्तार अंसारी जिन्हें जहर देकर मार दिया गया और इससे पहले अतीक और अशरफ को पुलिस की हिरासत में मार दिया गया, तो ये तमाम लोग जो है मुसलमानों के कद आवर लीडर रहे हैं। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनके जनाजे की पब्लिक ने बता दिया और उनके इंतकाल के बाद लोगों ने की मोहब्बत ने बता दिया कि मुख्तार अंसारी कितने अजीज थे और लोगों के दिलों के करीब थे। हजरत मौलाना महमूद मदनी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अहमद अंसारी को गरीबों और मजलूमों के मददगार की हैसियत से हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा जाना जाएगा। मौलाना महमूद मदनी ने गाजीपुर और मऊ उत्तर प्रदेश के मशहूर सियासी और समाजी लीडर मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि उनकी मौत के असबाब पर अवामी शुकूक व शुबहात और अहले खाना की बेइत्मीनानी से इंसाफ और इंसाफ नाफिज करने वाली एजेंसियों पर एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि सिर्फ इंसाफ काफी नहीं है, बल्कि
इंसाफ पर एतबार और एतमाद भी ज़रूरी है जो लोगों का उठता जा रहा है। वहीं पर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा है कि मुख्तार अंसारी की अवामी मकबूलियत और उनकी खिदमत को मिटाया नहीं जा सकता। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने लोगों से एक अपील की है और उलमा और अइम्मा से और जनता से भी एक अपील की है जो ऑडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि शकील बिन हनीफ और उसके मुत्तबईन, उसके मानने वाले ये इस्लाम से खारिज हैं, यानी ये मुसलमान नहीं हैं। मौलाना ने कहा कि इन्हें मसाजिद से दूर रखा जाए। मसाजिद अइम्मा किराम, उलमाए इज़ाम और दीगर मुसलमानों ने हिंद के नाम उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम और शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने एक बहुत अहम पैगाम देते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में शकील बिन हनीफ का फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है जो महदवियत और मसीहियत का झूठा दावा करता है और उसके पैरोकार बोले बाले मुसलमानों को अपना निशाना बनाते हैं जो दीन से बिल्कुल दूर है। मौलाना ने फरमाया कि शकीली अपनी पूरी सरगर्मी के साथ खुफिया अंदाज में तहरीक चलाते हैं और मुसलमानों के इलाके में ही रहकर नौजवानों पर मेहनत करते हैं। बज़ाहिर अपने को बड़े ही दीनदार बताते हैं, इस तरह गुमराही फैलाते हैं कि हमको इस बात की खबर तक नहीं हो पाती। मौलाना ने फरमाया कि चूंकि अब रमज़ान का आखिर अशरा होने वाला है, फितने शकील बिन हनीफ के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले बाज़ मुतमद अहबाब की रिपोर्ट के मुताबिक शकीली अनजान जगहों में एतिकाफ के नाम पर मसाजिद में मुकीम हो जाते हैं और लोगों की जहन साजी करके अपनी गुमराही फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि आखिर अशरे में मुसलमान मसाजिद में एतिकाफ करते हैं। इस मौके का शकीली बड़ी तादाद में फ़ायदा उठाएंगे, चौकन्ना रहें। और मौलाना ने कहा कि ये लोग इस्लाम से खारिज हैं। मौलाना ने यह भी अपील की मसाजिद के जिम्मेदारान से कि किसी अनजान को अपनी मस्जिद में एतिकाफ की इजाज़त न दें, बल्कि उसकी पूरी तहकीक और शनाख्तनामा देख कर ही उसे अपनी मस्जिद में एतिकाफ की इजाज़त दें। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। वज़ीर आला ममता दीदी ने भी बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि रियासत बंगाल में CAA नाफिज करके दिखाए। वहीं पर उन्होंने ममता दीदी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा की 200 सीट हासिल करके दिखाए। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि बीजेपी मैच फिक्सिंग का काम कर रही है, वरना बीजेपी 180 सीट भी हासिल नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने भी बाकायदा टैक्स टेररिज्म यानी टैक्स के नाम पर जो आतंकवाद बीजेपी फैला रही है उसके खिलाफ कांग्रेस ने गुज़िश्ता कल मुल्क भर में आंदोलन किया और सदर जमहूरिया को भेजा गया एक मेमोरेंडम, यानी कांग्रेस की तरफ से एक मेमोरेंडम भेजा गया और इस मौके पर लीडरान और कारकुनान ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और मरकजी एजेंसियां यानी CBI ED के गलत इस्तेमाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और शरद पवार ने तो कह दिया कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। इस्लाम जिमखाना की इफ्तार पार्टी में NCP लीडर ने कहा कि पड़ोस मुल्क की तरह हालात यहाँ नहीं होने चाहिए, लेकिन अफसोस है कि मोदी और बीजेपी ने ऐसे हालात यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश कर दी है।